So welcome back again in Bimwala, and in today's lecture we're gonna see how we do quantification or estimation in Navisworks. Okay, and we will also look into the 5D cost estimation, fifth dimension of BIP. Right. So stay tuned and buckle up. Let's start without wasting much of our time. Let me share the screen and just let me know if the screen is visible to you, right? Okay. I believe the Navisworks screen is visible to you, right? And also the quantification in Navisworks screen. PPT part is also, I'm sorry. Okay. So this is also open to you. Correct. Now we'll see how, how just 1 minute. Yes. So yeah, the quantification in Navisworks, basically the estimation part. Once we are done with our model, we can export our model as in NWC file format, and then we can open that model in Navisworks. We can perform class detection, we can do 4D simulation, we can do 5D simulation, okay, 4D sequencing, 5D simulation, as well as quantification. So now today we'll discuss quantification. We'll see the basics of quantification in Navisworks. Already, all right. Again, these are the do's and don'ts. The active participation. I want gadgets on the D&D mode. Put water bottles. Stay hydrated. Okay, and I do not want any spamming in between. If you have relevant questions, you can always ask. And no other works for another 1.5 hour maybe. Okay. Good to go. Yes, so let's have a recap from the last session. We have seen how to create custom search sets, okay, for the simulation. There were two scenarios. One was auto attached using rules, okay. So we had a 40 schedule and we imported that schedule into the Navisworks and then integrated with the model. That was one use case, and another one was we there itself in the model itself we created a schedule and then we performed the 4D simulation. These were the two methods basically. And how to export that 4D simulation. If we want to export that simulation, okay, we can always export the video simulation part. That is also doable. Correct. Then we also saw the appearance profiler, how to change the colors of different stories, columns, fields, and all. That was all. Now let's see what is inside today's menu. Okay, आज menu में क्या है? So introduction to quantification in Navisworks. All right, create quantity takeoff. We'll see 3D and 2D, but I will mainly focus on 3D. Okay, I'll not cover 2D because it's already. I mean, we do 2D quantification, so it doesn't make any sense. More sense for me. How to import export quantities to Excel. Okay, 5D cost schedule, how to import the cost schedule. All right, create 5D simulation and how to export that 5D simulation. These are the topics for today. If you have any question and answers, we can always discuss in the last or you can ask in between as well. Now, without further delay, let me give you a brief idea about quantification. The process of measuring quantities of materials from models, drawings, and specifications prepared by architects, engineers, and other designers is known as takeoff, right? Takeoff or quantification. Measuring of quantities, measuring quantities of materials. Let's say we have models, drawings, those have been prepared by architects or engineers or designers. We need to measure quantities of materials. That is
known as quantification or takeoff. Navisworks, if we talk about Navisworks, takeoff is carried out using the quantification feature. I'll show you where it is available. It is that quantification tab available. Okay, don't worry about that. This helps you automatically make material estimates, measure areas, and count building components. Correct. So once we are ready with the model, if you have a Revit model or 3D model, I mean any 3D model, you can always import that model into Navisworks. All right, and then you can perform quantification. It will give you the exact quantities, accurate quantities. Okay, without any estimation. Unlike in case of AutoCAD drawings, wherein we measure the quantities based on certain assumptions and all, but here we'll be having the exact accurate quantities based on the 3D models. So far so good. Okay, now key terms which need some which need key terms which need some attention over here. Quantification workbook, that means the main workspace that contains the object data for the takeoffs you create in. This is a kind of workbook you will see in the Navisworks. Item catalog is nothing but a kind of organizational database for your takeoff project, defining takeoff groups and disciplines, correct? A resource catalog, the resource needed for successful completion of a project. Okay, so these are something related to resources. These are related to get items, basically materials or items. Or you can say items means like foundation, column. This will become your item. Resource means machinery, manpower, and all. Correct. What are the file types it supports basically? So it supports AutoCAD, architecture, MEP, Civil 3D, Plant 3D files, Autodesk Inventor files, Autodesk Revit files. Okay, the file support system basically, which Navisworks supports for the quantification works. Correct. Okay, let me take you through. Let me take you to the Navisworks window now. So this is the landing page when we open, when we try to open the Navisworks. This is how it looks like. Okay, and yes, we have the recent files. All right. So yes, of course, I would like to open the recent file on which we worked last in the last class. Okay, so that was the photo simulation sample model. I would like to open this model. It will easy my work, further work. Okay, and of course we can open from here itself. If we have some files which are not available in the recent files, we can always open from here. Okay, and then if we want to open a new file, we can always open the new file as well. All right, now I'm opening this file which I gave you and on which we practiced the last class as well. Okay, so this is the model. This is the sample model, by the way. Those who do not know, those who are new, this is a sample model, okay, which is available online or you can take from the video as well. I mean, the description box as well. Correct. This is our 3D model. Okay. Now, uh, we were talking about the quantification tab. So when you go to the home tab, okay, home tab, and further in the home tab, you will find this quantification button, or in the home panel, or you can say the tools panel. This is the tools panel. Okay, here we have tools panel, and in the tools panel, we have this quantification just adjacent to the timeliner. So we have already seen timeliner prior that we have seen Clash Detective where we ran the Clash test. Okay, and then we saw the 4D simulation sequencing and timeliner. Now it is quantification. Correct. Click on the quantification. I have already explained that how you can pin or unpin these options or these tabs. The moment you click over here, it will appear either on the vertical form, in the vertical form, or the horizontal form. Correct. So you can always
click on this, and you can adjust the placement with the help of these arrow keys. Correct? If you want to put on the right hand side, left hand side, horizontally, in the bottom, just like so. Generally, it is advisable to work like this. Okay, correct. Now, this is the quantification tab I have just opened. Okay, I have pinned it. I can unpin it. Okay, just like that. So I told you, when you unpin it, it will disappear the moment you remove your cursor from there. And as soon as you put your cursor or hover over your cursor on the project catalog, right? It reference catalog, resource catalog, it will again appear to you. So you need to pin this basically from the right hand side. You can pin from this small option, the pin like symbol. You can click on that and it will be pinned for you. Correct? Now further, this is the project setup. This is the resource catalog. This is the quantification workbook. This is item catalog, right? Quantification workbook. We need to work in the quantification workbook. Correct? All right. Now let me take you to the PPT again. Where is the PPT? Okay, this is the PPT. So we have opened the Navisworks. Now create quantification in Navisworks 3D. This is for 3D model. We need to basically follow these 5 steps. We need to create a project. Then we need to select takeoff items. We need to create takeoff items. In case if we want to create some new items, we can always create. And if we want to take off the already existing items, then also we have the option. Subsequently, we need to perform takeoff, and then finally we can export the quantities in Excel, CSV, in any form. Okay. So we have opened the Navisworks file in the previous session, which we have used in the previous session. Okay, I will go to home. I already went to home, and then I clicked on the quantification, and I have already pinned the quantification workbook window. Okay, I told you about the about how to pin or how to unpin the workbooks. Correct? यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इफ यू हैव एनी समस्या, एनी प्रॉब्लम, मुझे बताएं, देन ओनली आई विल प्रोसीड फर्दर. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन द क्वांटिफिकेशन वर्कबुक we have project setup. We need to click on the project setup. Okay, and then we need to select the uniformat catalog. Okay, and then we need to select next metric units or any other units if we want to select, and then take off properties. We need to verify the units, click on the next, and then finish. So this is the basic requirement. It is known as basically the project setup. We are setting up a project. We are setting up our catalog system, uniformat or master format. I'll tell you the difference between the two. We are setting up the units, whether we're gonna use metric units or IS units, maybe. And then finally we selecting takeoff property. And we are also verifying the units. All right. Let me show you this in the Navisworks. And further, we need to switch to item catalog, and we need to define some new items, maybe structural column or core walls. So I'll show you this in the Navisworks. Let us go to the Navisworks. So here we have project setup. I click on the project setup. Okay, would you like to view quantification getting started tutorials? I do not want to go to the tutorials now. Remind me later, maybe. Correct? Okay. Further, setup quantification, select catalog. Okay. Select a catalog to organize your takeoff project. Use a listed catalog. Now, catalog is nothing
as I told you, it is just the catalogs define the organizational structure of your project and typically contain groups of items and materials you will use for takeoff. So basically, catalog is nothing. It is an organized structure of our project. For example, if I were give you an example, let's say our project has foundation, maybe substructure, then superstructure. In superstructure also we have columns, beams, slabs. Okay, and then we may have steel structures as well, maybe trusses or steel columns, composite columns. And then we will be having some architectural items, walls, all right, then windows, doors. So the organized structure of all these items, okay, in groups, you can say, maybe I can say there is a group of columns. Okay, it will become a group of items. Column is an item, and the group of columns will become a group of items. Correct? So catalog is nothing. It is basically a defined organized structure. We can always define our own catalog as well. Correct? So uniformat is defined. It is a universally adopted, kind of structure, basically. Correct? And CSI 48, CSI 16, these are also, defined by, Western countries. Okay. So इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट एक एक काइंड ऑफ जैसे आप एक्सेल में, आपने एक्सेल में एक फॉर्मेट बनाया, एक टेम्पलेट बना दिया, और टेम्पलेट बनाने के बाद उस टेम्पलेट को आप यूज करते हो। उस टेम्पलेट में आपने फाउंडेशन को अलग रखा, उसमें आपने मे बी फाउंडेशन को फर्दर अलग अलग कर दिया, आइसोलेटेड फाउंडेशन को अलग कर दिया, कंबाइंड फाउंडेशन को अलग कर दिया, सो दैट in case whenever you need in future, you can directly utilize that format. It is as simple as that. अभी अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? यूनिफॉर्मेट और मास्टर फॉर्मेट के बीच का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। यूनिफॉर्मेट इज बेसिकली कैटेगराइजेशन ऑफ आइटम्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना? मास्टर फॉर्मेट क्या होता है? मास्टर फॉर्मेट बेसिकली कैटेगराइजेशन होता है based on the what? Based on what I would say, I think just 1 minute. Let me recheck it. Okay. Let me tell you. I have. I think the screen is visible to you as well. Uniformat. I just got confused. And master format. There are two formats basically. Difference. ठीक है ना? हम डिफरेंस देख लेते हैं ना, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मास्टर फॉर्मेट इज अ मटेरियल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिल्डिंग कंटेंट, स्कोप ऑफ वर्क, व्हाइल यूनिफॉर्मेट इज अ सिस्टम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिल्डिंग कंटेंट। अच्छा, मैंने उल्टा बताया था, दैट इज व्हाई आई हैव चेक ना, तो इसीलिए मैंने बोला कि एक बार चेक कर लेते हैं। मास्टर फॉर्मेट एंड यूनिफॉर्मेट, देयर आर टू प्राइमरी मेथड्स ऑफ असेंबलिंग अ डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट। वन इज बेस्ड ऑन द पीसेस एंड पार्ट्स ऑफ अ बिल्डिंग master format, while the other is big focused on the assembly of the parts or systems of a building। ये भी नहीं क्लियर हुआ, और देख लेते हैं। ओमनी क्लास वर्सेस मैंने कहाँ पर देखा था मास्टर फॉर्मेट एंड यूनी फॉर्मेट? एक इजी सी डेफिनेशन थी, व्हाट इज यूनी फॉर्मेट एंड मास्टर फॉर्मेट। यहाँ पर देखते हैं वर्डप्रेस में व्हाट विल इट शो बस। यहाँ पर भी क्लियर नहीं हो रहा। सो बेसिकली master format is material based organization of building content, scope of work, while uniformat is system based। Okay,
सिस्टम बेस्ड है और एक हमारा है मटेरियल बेस्ड, ठीक है ना। सॉरी, here is it is also not clear. What do you mean by uniformat and master format systems catalogs? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फॉर्मेट एंड मास्टर फॉर्मेट। So if you see here, master format, standardized material specification, execution methods, and construction activities. Okay, allow cost estimates and comparison between construction system from early stages. Okay, uh, not very much clear from here. The architecture, engineering, and industries gold standard for organizing and communicating specification work result for construction projects. How many master format divisions? Okay, well, I'm not going to waste the time. The simple definition is that यूनिफॉर्मेट बेसिकली दी दोनों हम कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट होता क्या है कि मास्टर फॉर्मेट में हम थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, प्लानिंग स्टेज में करते हैं, थोड़ा रफली एस्टिमेट करते हैं, वेयर एज यूनिफॉर्मेट में हम डिटेल्ड एस्टिमेट करते हैं। यूनिफॉर्मेट हमारा सिस्टम बेस्ड होता है, वेयर एज सिस्टम मीन्स प्लम्बिंग सिस्टम का अलग हुआ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल अलग हो गया, मैकेनिकल अलग हुआ, सिविल अलग हुआ। वेयर एज मास्टर फॉर्मेट क्या होता है, हमारा मटेरियल बेस्ड होता है। ओवरऑल कंक्रीट कितना है, ओवरऑल पाइपिंग कितना है, ओवरऑल मे बी यू कैन से ब्रिक वर्क कितना है। दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। और मैं आप आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस एज वेल कि आप भी जाकर उसको थोड़ा सर्च करें, यूनिफॉर्मेट और मास्टर फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। तो आई एम सेलेक्टिंग यूनिफॉर्मेट एज ऑफ नाउ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आपको समझ में आ जाएंगी चीजें तो आप ऑलवेज अपने आप फिर से चूज कर सकते हो, यहाँ से आप ब्राउज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्राउज में भी अगेन आपको तीनों कैटेगरीज ही मिलेंगी, ये तीनों, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन इंस्टीट्यूट, सीएसआई की फुल फॉर्म होती है, अमेरिका वगैरह में ज्यादा यूज होता है। बट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू कैटलॉग, ओके, मैं यहीं से यही यूज कर रहा हूँ, लिस्टेड वाला यूनिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, which will be the unit measurement unit system I'll be following, imperial, ठीक है, metric, variable। so metric हम जनरली यूज करते हैं इन इंडिया, तो आई एम गोइंग विद द metric, converts model values to metric। next, back, these are the units which I'll be using, so I need to check the units as well, meters, square meter, cubic meter, kilogram, model weight। अगर टन में करना है तो टन में कर सकते हैं, ग्राम में करना है ग्राम में कर सकते हैं, but these are the units by default। I would recommend not to change these units, go by default settings। Next, and then I will finish up my project, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया, मैंने अपना सेटअप कर लिया नाउ, ठीक है। तो ये दिस इज द फॉर्मेट, बेसिकली दिस इज यूनिफॉर्मेट, करेक्ट। यहाँ पर देखिए सब स्ट्रक्चर एक कैटालॉग है, ये दिस इज बेसिकली नथिंग, this is basically nothing but a kind of quantification workbook। ओके, अगर आप आइटम कैटलॉग में यहाँ से जाएंगे तो आप देखेंगे दीज आर द ग्रुप्स, ठीक है ना, ये ग्रुप्स है यहाँ पर।
और ग्रुप्स के अंदर आपको फर्दर सब ग्रुप्स मिलेंगे एंड देन यू हैव आइटम्स। ठीक है ना, ये आइटम्स है यहाँ पर। सो बेसिकली स्टैंडर्ड फाउंडेशन आइटम है, स्पेशल फाउंडेशन आइटम है, इन सारे फाउंडेशंस को मिलाकर एक ग्रुप बना, वो हमारा फाउंडेशंस बना। फाउंडेशंस को अगेन वी कैन कैटेगराइज as maybe substructure, may not maybe but exactly it is a substructure. So major group is your substructure, then shell structure, shell means above structure, इंटीरियर्स को अलग बनाया, सर्विसेज को अलग किया, इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग्स को अलग किया। ठीक है ना, स्पेशल कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन अलग है, बिल्डिंग साइट वर्क अलग है। दिस दिस होल काइंड ऑफ थिंग। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा सिस्टम है, ये हमारा है क्या? ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है व्हाट? दिस इज कैटलॉग। ठीक है ना, अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अभी हमने कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट किया है कैटलॉग का? यूनिफॉर्मेट कैटलॉग हमने सेलेक्ट किया। तो यूनिफॉर्मेट क्या करता है? बेस्ड ऑन द सिस्टम्स। ठीक है ना, सिस्टम्स के बेसिस पे सब स्ट्रक्चर हमारा अलग सिस्टम बता दिया, इंटीरियर्स अलग सिस्टम है। हैड इट बीन अ केस, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हमारा केस होता मास्टर फॉर्मेट का, अगर मास्टर फॉर्मेट का केस होता तो वो हमारा बेस्ड ऑन मटेरियल्स होता। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस। नाउ अगेन आई विल गो टू वेयर क्वांटिफिकेशन वर्कबुक में। ठीक है जी, मैं क्वांटिफिकेशन वर्कबुक में हूँ। अब हमें यहाँ पर इस मॉडल की कुछ चीजों को क्वांटिफाई करके देखना है कि कैसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। नाउ let me take you to the presentation. Click on new item, item name, structural item, structural columns, WBSH, refer image. Similarly, create another item. The name for walls, WSHI. Okay. Now, okay, go to the quantification workbook. So there are 2-3 methods basically. एक तो ये है कि ऑलरेडी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं का हम क्वांटिफिकेशन करें। दूसरा ये है कि हम न्यू आइटम्स क्रिएट करें और उनका क्वांटिफिकेशन करें। ठीक है, दोनों देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू मे बी शेल। शेल में देखते हैं सुपरस्ट्रक्चर में हमारे पास क्या फ्लोर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी, फ्लोर कंस्ट्रक्शन को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने फ्लोर कंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से मॉडल टेक ऑफ में मैं गया। ओके, मॉडल टेक ऑफ में जाने के बाद मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हमारे अभी क्या है? ग्रेडेड आउट है। दैट मीन्स अभी मेरा क्वांटिफाई ये नहीं हो सकता, तो आई विल राइट क्लिक ओवर इट। ठीक है, वर्चुअल टेक ऑफ की बात कर रहे हैं लेकिन वर्चुअल टेक ऑफ हमें नहीं करना है, यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है ना, कौन से आइटम का हम टेक ऑफ कर सकते हैं और कौन से का नहीं कर सकते हैं। ओके, आई गो टू मे बी फाउंडेशंस, स्टैंडर्ड फाउंडेशंस एंड देन ओके स्टैंडर्ड फाउंडेशंस। तो मुझे बेसिकली करना क्या है कि ये वाला जो आइटम है स्टैंडर्ड फाउंडेशन को मुझे सेलेक्ट करना है इस मॉडल में। ठीक है ना, जैसे ही मैं इस ये वाले आइटम को मॉडल के अंदर सेलेक्ट कर पाऊंगा, वैसे ही मेरा ये टेक ऑफ द सेलेक्टेड आइटम्स इनेबल हो जाएगा एंड देन आई कैन टेक ऑफ द क्वांटिटीज। तो अब मुझे इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? लेट अस गो टू द फ्रंट व्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड फाउंडेशन है, स्टैंडर्ड फाउंडेशन है, स्पेशल फाउंडेशन है। ठीक है, कोई बात नहीं। सो इसको सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? मेरे पास ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट नन। ओके, सिलेक्शन ट्री को मैं ओपन करता हूँ एंड फ्रॉम सिलेक्शन ट्री आई हैव फर्दर द categorized form of items. Okay, categorized form of the items from the model। ठीक है, उसके बाद मेरे पास और ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फाउंडेशन की अगर हम बात करें
और मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल ये वाले कुछ आइटम्स हैं, मे बी पार्किंग के कुछ आइटम्स हैं, और मैं आपको बता दूं लेवल 3, फॉर एग्जांपल लेवल 3 की बात करते हैं, दिस इज लेवल 3, ठीक है जी। लेवल 3 पर मेरे ये आइटम्स सेलेक्टेड हैं, ठीक है। नाउ वन ऑप्शन इज दैट कि मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ, ठीक है, क्वांटिफिकेशन में जाऊं, टेक ऑफ टू स्टैंडर्ड फाउंडेशंस, ठीक है, टेक ऑफ टू न्यू कैटलॉग आइटम, ठीक है, सेलेक्ट कोरेस्पॉन्डिंग टेक ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑप्शन है मेरे पास, मैंने कुछ नहीं किया। मैं थोड़ा सा जस्ट चेंज कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा था बेसिकली मैं आपको फाउंडेशंस की पार्ट बता रहा था, बट मैंने दूसरा फ्लोर सेलेक्ट किया, तो अभी फाउंडेशन की ही बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा एलिवेटर पिट है, पार्किंग है, ऑलराइट, टॉप ऑफ फुटिंग है, स्ट्रक्चरल कॉलम, स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस, ठीक है, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, एंड वी हैव दिस फाउंडेशन एज वेल, स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस, करेक्ट। नाउ मैंने ये फाउंडेशन सेलेक्ट कर ली, ठीक है, कुछ नहीं किया था, मैं पहले यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है, यहाँ से आई एम नॉट एबल टू सेलेक्ट द आइटम्स, और जब तक मैं यहाँ से आइटम्स को सेलेक्ट, सेलेक्ट मीन्स यहाँ पर तो मैंने क्लिक कर दिया, बट मॉडल के अंदर वो सेलेक्ट होना चाहिए, देन ओनली आई विल बी एबल टू टेक ऑफ द क्वांटिटीज, क्योंकि यहाँ पर देखिए मॉडल टेक ऑफ में ये सारे ग्रेडेड आउट है, ग्रेड आउट हो रखे हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आई नीड टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर फाउंडेशन जिसका मैं टेक ऑफ करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल फाउंडेशन है, स्पेशल फाउंडेशन में देख लेते हैं कौन सी फाउंडेशन आती हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि लेट अस कीप पाइल फाउंडेशन इन स्पेशल फाउंडेशन, स्पेशल फाउंडेशन को के अंदर हम पाइल फाउंडेशन को रख लेते हैं। तो मुझे सिलेक्शन ट्री में जाना पड़ा, सिलेक्शन ट्री ऊपर है होम टैब में, मैंने सिलेक्शन ट्री को ओपन किया, सिलेक्शन ट्री को ओपन करने के बाद यहाँ पर पूरा मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, मेरा सिंपल एक लाइन का मॉडल, ठीक है। मुझे उसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के बाद इट विल शो मी द कैटेगराइजेशन, लेवल वाइज कैटेगराइजेशन, ठीक है। लेवल वाइज कैटेगराइजेशन ये मुझे शो करेगा, और लेवल वाइज कैटेगराइजेशन करने के बाद मुझे पता है टॉप ऑफ फुटिंग में मेरे पास क्या होगा, फाइल्स होंगी और फुटिंग्स होंगी और मे बी स्लैब्स होंगे, बट अगेन स्पेशल फाउंडेशन में आई विल बी कीपिंग माय व्हाट, ओनली फाइल्स। सो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें मॉडल में, अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूं, तो आप देख पाएंगे कि अभी मेरी फाइल्स सेलेक्ट है, ठीक है। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हाउ वी हैव ग्रुप्ड और हाउ वी हैव क्रिएटेड द सर्च सेट्स बेसिकली, ठीक है ना, सर्च सेट के बारे में बात हुई थी। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि कुछ फाइल्स नहीं सेलेक्टेड है, तो वो रीजन ये है कि हमने सर्च सेट कुछ ऐसे बनाया है, उसमें से कुछ फाइल्स हमने छोड़ दी है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, ठीक है ना, वो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहें तो इसमें सारी, व्हाट आई वुड से, सभी की सभी फाइल्स कंसीडर कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ तक का पोर्शन ले सकते हैं, आप चाहें तो फर्स्ट फ्लोर ले सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर डिस्क्रिप्शन, इंजीनियर और डिजाइनर के डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन पे है, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको समझना है जस्ट इतना कि आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है, जब वो ब्लू हो जाएगा दैट मीन्स यू हैव सेलेक्टेड दी आइटम्स। अभी मैंने फुटिंग के आइटम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और मैंने उसको स्पेशल फाउंडेशन की कैटेगरी में रखा। अब मैं जाऊंगा और इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और क्वांटिफिकेशन के ऑप्शन में आई गो एंड देन टेक ऑफ टू स्पेशल फाउंडेशंस, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है, टेक ऑफ टू न्यू आइटम कैटलॉग। अगर आप चाहते हैं कि स्पेशल फाउंडेशन की कैटेगरीज में आप इसको रखना चाहते हैं, तो सिंपली यू हैव दैट ऑप्शन एज वेल, फर्स्ट ऑप्शन है जो हमारा। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कोई न्यू आइटम क्रिएट करें, न्यू कैटलॉग आइटम क्रिएट करें, उसमें यू कैन कीप दीज आइटम्स, ठीक है, और सेलेक्ट कोरेस्पॉन्डिंग टेक ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये इसको छोड़ देते हैं, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स इज। तो हम स्पेशल फाउंडेशन की कैटेगरीज में इसका टेक ऑफ कर लेते हैं। मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इसने इसका स्पेशल फाउंडेशन की कैटेगरी में इसने बनाया स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, एंड देन वी हैव दिस स्लैब, दिस फुटिंग्स, दिस एंड ऑल,
अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको याद होगा कि अभी जब मैंने कुछ नहीं किया था, स्पेशल फाउंडेशन किया था, तो यहाँ पर मुझे कुछ भी विजिबल नहीं था ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है। जैसे ही मैंने क्वांटिफिकेशन किया यहाँ से, एसएफडी राउंड फाउंडेशन और ये वाली फाउंडेशन और ये वाली फाउंडेशन, सबका कैटेगराइजेशन, सबका एस्टिमेशन ऑन द राइट हैंड साइड मुझे मिल गया। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये देखिए स्टेटस, डब्ल्यूबीएस, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कोड। ठीक है, जो कि हमारा, जिन लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया है उनको पता होगा डब्ल्यूबीएस किसे कहते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को बोलते हैं। और ये हमारा टास्क रिलेटेड होता है और मेनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये टर्म यूज होती है। ठीक है, और भी बहुत जगह होती है बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म में ज्यादा होती है। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट क्या है, फाउंडेशन है। ठीक है, व्यू पॉइंट, कमेंट्स कुछ नहीं, मॉडल लेंथ वगैरह कुछ नहीं। और हमारा यहाँ पर 0 0 0 0। ठीक है, उसके बाद सारा 0 0 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें देखना ये है कि ये 0 0 0 क्यों है। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर में हमारे पास अगेन सारी 0 0 है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका कुछ ना कुछ क्वांटिफिकेशन होना चाहिए। इसी तरीके से अब हम जाते हैं सुपर स्ट्रक्चर में। ठीक है, फ्लोर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, और मैं किसी सेकंड थर्ड फ्लोर में जाता हूँ। टॉप ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग की बात कर रहा है ये। लेवल 3 की बात कर लेते हैं, फ्लोर की, यहाँ पर फ्लोर की बात हो रही है। ठीक है, तो लेवल 3 का मैंने फ्लोर सेलेक्ट किया। ठीक है जी, फ्लोर सेलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, क्वांटिफिकेशन किया, और टेक ऑफ टू द फ्लोर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर मेरा टेक ऑफ हो गया। ठीक है, अब टेक ऑफ में जाकर देख लेते हैं कुछ क्वांटिटीज आ रही हैं या नहीं आ रही। एनडब्ल्यू कंक्रीट ऑन मॉडल डेक। ठीक है जी, यहाँ पर क्वांटिटीज हम देख रहे हैं, थिकनेस आ गई है, हाइट आया है, पैरामीटर आया है, एंड एरिया भी आ गया है। वॉल्यूम ऑल्सो वी डू हैव। ठीक है जी, नीचे और ऊपर हम देखते हैं एनडब्ल्यू कंक्रीट ऑन मेटल डेक। ठीक है, ऑन मेटल डेक, एंड वी हैव हाइट 0, पैरामीटर है, एरिया है, वॉल्यूम है, एंड वेट हमें नहीं चाहिए, तो वेट हमारा वॉल्यूम है। तो ये क्वांटिफिकेशन इसका आ गया, वेयर एज फाउंडेशन का हमारे पास 0 0 क्वांटिटीज आया है। तो वी नीड टू चेक इट व्हाई इट इज हैपनिंग। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम देख लेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस, करेक्ट। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पर गए और हमने इधर से राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद हम क्वांटिफिकेशन में गए, क्वांटिफिकेशन में जाने के बाद हमने उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं सब हेड के अंदर उसको क्वांटिफाई कर दिया। ठीक है, अगर हम नए आइटम को, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया LOTS लेवल 4, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और मैंने राइट क्लिक किया, एंड देन मैंने न्यू कैटलॉग, मैंने न्यू आइटम बनाया मान लीजिए। तो न्यू आइटम अगर मैं बनाता हूँ, तो न्यू आइटम बनाने के लिए मुझे वेयर इज द न्यू आइटम, कहाँ पर ऐड हुआ न्यू टाइम आइटम, मैं भूल गया हूँ, जस्ट लेट मी, इनको फिर से मैं वो कर लेता हूँ, एक्सपेंड, सबको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कोलैप्स कर लेते हैं, एंड देन वी विल सी कि कहाँ पर ये आइटम ऐड हुआ। L4 फ्लोर्स, एंड देन वी हैव फ्लोर्स, एंड देन ये। ठीक है, तो ये वाला आइटम मैंने ऐड किया, न्यू आइटम, जैसे ही मैंने आइटम ऐड किया तो वो L4 के नाम से एक यहाँ पर एक ग्रुप बन गया, ग्रुप के अंदर फ्लोर्स, एंड फ्लोर्स के अंदर फर्दर वी हैव NW कॉन्क्रीट मेटल। जिस तरीके से ये हायरार्की यहाँ पर दिख रही है आपको, उसी तरीके से सिमिलरली आपको सेम टाइप ऑफ ग्रुप आपको नीचे मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये न्यू आइटम बन गया और उसका क्वांटिफिकेशन यहाँ पर होकर अपने आप से रेडी हो गया। ठीक है, तो दिस इज अनदर वे। अगर आपको कोई नया आइटम ऐड करना है तो यू कैन ऑलवेज ऐड दैट आइटम एज वेल। ठीक है, दिस इज वन वे। नाउ अगर हमें न्यू आइटम यहाँ पर ऐड करना है तो हम वहाँ पर कैसे आइटम ऐड करेंगे, कैटलॉग में जाते हैं हम, न्यू कैटलॉग में मैं गया। ठीक है, न्यू कैटलॉग में जाने के बाद मान लीजिए मुझे कुछ एज पर दी PPT मुझे कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल
हाँ, जैसा कि हमारी पीपीटी में कहा गया है कि न्यू आइटम हम ऐड करेंगे स्ट्रक्चर कॉलम का और उसको डब्ल्यू कोड देंगे एच, एंड अनदर आइटम ऐड करेंगे कोर वॉल्स का डब्ल्यू रहेगा उसका आई। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। तो मैं अभी आइटम कैटलॉग में हूँ, नीचे देखिए यहाँ पर आइटम कैटलॉग। ठीक है, बॉटम में आपको दिख रहा होगा आइटम कैटलॉग। क्वांटिफिकेशन में जाता हूँ तो वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, और रिसोर्स कैटलॉग में जाता हूँ तो वो ब्लू हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आइटम कैटलॉग में मैं हूँ। आइटम कैटलॉग में न्यू आइटम मैंने ऐड किया। ठीक है, न्यू आइटम मैंने किसके अंदर ऐड किया, स्पेशल कंस्ट्रक्शन के अंदर ऐड किया। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ, न्यू आइटम का नाम मैंने बोला कॉलम्स। ठीक है, यहाँ से कॉलम्स चेंज किया मैंने, और कॉलम्स चेंज करने के बाद उसको मैंने एच, ठीक है ना, ABCDEFGH, एच इसलिए दिया मैंने, यहाँ पर है नहीं ना, जी है, और जी के बाद एच आएगा तो नेक्स्ट विल बी एच, तो मैंने इसको एच दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देन एक आइटम और मैं ऐड करूंगा। ठीक है जी, कहाँ पर ऐड हुआ है कॉलम्स का, कॉलम्स हमारा ऐड हुआ है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर ऐड नहीं करना है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, मुझे ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐड करना है मुझे। तो न्यू आइटम के लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा, न्यू आइटम। ठीक है, न्यू आइटम का नाम कॉलम्स, कॉलम्स या कॉलम। ठीक है, और उसका मैंने कोड दिया एच। ठीक है जी, ये ऐड हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से मैंने ऐड करना है फोर वॉल्स, फोर वॉल्स भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम नया आइटम ऐड कर सकते हैं। आई, एच, आई, इसको मैंने आई नाम दिया। कोड इसका बेसिकली आई हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास दो आइटम्स हमने न्यू ऐड किए। ठीक है, फोर वॉल्स और कॉलम्स। ठीक है, 1.1 में नहीं आना चाहिए, ये हमारा बाहर आएगा। इसको अगेन मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ न्यू आइटम। राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बार बार में अंदर आ रहा है, लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, चलो मैं दूसरे किसी आइटम के अंदर ऐड कर लेता हूँ। राइट क्लिक, न्यू आइटम। ठीक है जी, न्यू आइटम का नाम अगेन फोर वॉल्स, यहाँ पर ऐड किया मैंने, और आई इसका नाम दिया। ठीक है, आई नाम दे दिया मैंने। तो क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा विंडो को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये हो गया हमारा फोर वॉल्स जी। ये अंदर सब हेड के अंदर ले रहा है, कोई बात नहीं। कॉलम्स, अब मैंने कॉलम्स सेलेक्ट किया। ठीक है, और उसका कोड है WBS कोड इज एच, कॉलम। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर कॉलम है वो सारे कॉलम्स इस कैटेगरी के अंदर आ जाए। ठीक है, या फिर देख लेते हैं हमारी कॉलम वन। क्लिक ऑन द कॉलम्स वन, स्ट्रक्चर कॉलम्स। ओके, तो अब एक चीज और मैं आप यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज जो है वो है हमारी सेट्स। ठीक है, मैनेज सेट्स, और मैनेज सेट्स में हम जब जाते हैं तो इंपोर्ट सर्च सर्च करते हैं। ठीक है, तो सर्च सेट हमारे एक्सएमएल फाइल यहाँ पर ऑलरेडी है या नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। ओवर टू नेविसवर्क्स, सैम्पल फाइल्स, एक्सएमएल फाइल वी डू नॉट हैव। अच्छा, ओके, दैट मीन्स ओके, दूसरा दूसरा तरीका ये है, फाइंड आइटम्स में चले जाएं आप। फाइंड आइटम्स में जाने के बाद आपके पास कस्टम, जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, कस्टम्स के बाद आपके पास एक्टिविटी आईडी है, उसमें इक्वल्स टू, एंड देन यू हैव कॉलम्स वन। ठीक है, आपको ये फाइंड ऑल कॉलम्स सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, और जितने भी कॉलम्स है वो आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं अगेन यहाँ पर डिसेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ सेलेक्टेड नहीं है, और मैं इसको बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, अभी हमारा मॉडल में क्या सेलेक्टेड है,
अभी हमारे मॉडल में कुछ सिलेक्ट है। ओके, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट नन। ठीक है, सेलेक्ट नन किया मैंने। ये क्या है, ये इसका कलर चेंज हुआ है क्या? वाई इज दिस हैपनिंग? ओके, नो प्रॉब्लम। तो आई विल गो टू फाइंड आइटम्स। फाइंड आइटम्स में मैंने आया, मैंने कस्टम किया, एक्टिविटी आईडी किया और कॉलम्स वन को सेलेक्ट किया, तो मैंने फाइंड ऑल किया। ठीक है, फाइंड ऑल करते ही जितने भी मेरे कॉलम्स की कैटेगरी में कॉलम्स थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। अब मैंने इसको एक सर्च सेट बनाया। आई विल गो टू सेट्स एंड मैनेज सेट्स। मैनेज सेट्स में जाने के बाद मैंने इसको सेव सर्च कर दिया। ठीक है, और इनका नाम दिया मैंने कॉलम्स। ठीक है, एक सर्च सेट बनाया। अब मैंने क्या किया, मैंने किया कि जितने भी मेरे फ्लोर्स हैं, या फिर मैं कहता हूँ मुझे रैम की क्वांटिटी चाहिए। ठीक है ना, रैम की क्वांटिटी कितनी है, तो मैंने रैम को सेलेक्ट किया और रैम का एक मैंने सर्च सेट बनाया, रैम क्वांटिटी। ठीक है, वो सर्च सेट बन गया यहाँ पर। फिर मैंने कहा कि मुझे मुझे क्या चाहिए, लेवल टू की क्वांटिटीज चाहिए। ठीक है, तो लेवल टू को मैंने सेलेक्ट किया और उसको सर्च सेट बनाया, तो लेवल टू आ गया मेरा L2। ठीक है, ये तीन सर्च सेट मेरे पास ऑलरेडी है, मान लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये तीन सर्च सेट मेरे पास ऑलरेडी हैं और मैं इनकी क्वांटिफिकेशन करना चाहता हूँ। इस तरीके के सर्च सेट बाय द वे हमें मिलेंगे। ठीक है, पिछले बार मैंने आपको बना के दिखाए थे वो सर्च सेट, और मैंने उनको सेव भी किया था। जस्ट 1 मिनट, हाँ, जस्ट 1 मिनट माय डियर फ्रेंड्स। Navis works. I think these are the subsets. Let me open. No. Uh, this is something different, but I think these are not the subset which I'm looking. But yes, I mean, no objects found. This is from somewhere else. These are different subsets. But ये भी subset हैं, तो हम इनको किसी दूसरे प्रोजेक्ट के हैं ये, तो हम इन ऐसे बना के सेव कर सकते हैं, एंड देन वी कैन यूटिलाइज सर्च सेट्स एज वेल। आई जस्ट फॉरगॉट, मुझे मुझे याद है मैंने बनाए थे, और मैं आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, बट कोई नहीं, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने तीन सर्च सेट अभी बनाए हैं और मैं उनकी क्वांटिफिकेशन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी इनको मैं डिलीट कर दूँ एक बार, अदरवाइज फाइल मेरी हैवी हो जाएगी, तो मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, सर्च सेट हमारे पास होते हैं, सिलेक्शन ट्री हमारे पास होता है। ठीक है, हमने करना क्या है, जो हमारे पास यूनिक फॉर्मेट या मास्टर फॉर्मेट जो भी है, कैटलॉग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, क्वांटिफिकेशन वर्कबुक के अंदर दो ऑप्शन होंगे, या तो हमें कोई नया आइटम क्रिएट करना होगा, ऐसा रेयरली होता है। ठीक है, कोई नया आइटम क्रिएट करना हो, तो आप एक नया आइटम क्रिएट करिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस हेड के अंदर वो आइटम आपको क्रिएट करना है। ठीक है ना, मैं अगेन इसको खोल देता हूँ वर्कबुक को। किस हेड के अंदर आपको क्रिएट करना है आइटम, उस हेड के अंदर क्रिएट करिए। क्रिएट करने के बाद आइटम को सेलेक्ट करिए एंड देन आप उसको टेक ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज क्या है, आपके पास मॉडल है, आपके पास सर सेट अवेलेबल है, आप उसमें सर सेट में जाएं, पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद उसको पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर पहले से रखें। ठीक है, एंड देन आप उस ग्रुप के अंदर उसको क्वांटिफाई कर लें। तो ये दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, उन दो प्रोसेसेस को बताने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। उसको करने के बाद द ओनली थिंग इज कि आपको वो क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है फाइल को। ठीक है ना, ये वाला हमारा रह गया, ये हैंग हो गया है। आई एम सॉरी बट ये हैंग हो गया आई थिंक, तो मे बी आई नीड टू क्लोज द प्रोग्राम।
आई थिंक सॉफ्टवेयर। 2 minutes maybe because it is not responding now. यस, तो मैंने प्रोग्राम क्लोज कर दिया है अगेन। तो मैं क्या करता हूँ, आई थिंक इसको बंद करके मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ, दोबारा शेयर करता हूँ दूसरे लिंक से, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग काफी लंबी